Good morning, students. Today we'll be dealing with section 14 of Transfer of Property Act, which speaks about a rule against perpetuity. Now, what do we mean by the term rule against perpetuity, and what is actually the perpetuity? What is rule against that particular perpetuity? So, if we take into consideration the general meaning of the term perpetuity, perpetuity means a continuous, that is to say, continuity, or it may be called as unending transaction. It may be called as a continuous and it may be called as an unending transaction. Now, continuance means what? Keep on going. The transaction keeps on going. There is no end to it. An unending transaction again means an endless transaction. So, perpetuity means a continuous, that is to say continuity, and next is the endless transaction. Now, so far as the perpetuity is concerned in relation to the property which is transferred under Transfer of Property Act, because we were dealing with the immovable property from the initial stage, we are trying to understand Transfer of Property Act, and we know that Transfer of Property Act only deals with the transfer of immovable property, so we would try to understand what do we mean by the term perpetuity in relation to the property which has been transferred or which need to be transferred under Transfer of Property Act. So it is nothing but tying up of a property for an indefinite period. It is nothing but a tying up of property for an indefinite period. So under rule against perpetuity, that is to say section 14, when we talk about a transaction of any property, that is to say immovable property, then in that case we mean perpetuity is tying up of a property for an indefinite period. Now let us see how this perpetuity is created or how this continuity is maintained in relation to the property. So first there is a transfer which involves a transfer of property from generation after generation. जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं इस तरीके से कि वो जनरेशन टू जनरेशन बाइंड हो जाती है और कोई भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एलिनिएट नहीं कर पाता है, सिर्फ ट्रांसफरर जो है वही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करता है कि वो प्रॉपर्टी जो है या वो ट्रांजैक्शन जो है रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी को बाइंड करके रख देता है. So transfer involves generation after generation. When such kind of transfer is there, we call the same to be the transfer perpetuity, that is to say transfer in continuity. Then according to German, it means a disposition which makes the property inalienable for an indefinite period. हम क्या कर दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर दे रहे हैं यानी नॉन ट्रांसफरेबल कर दे रहे हैं फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड. उसका कोई पीरियड एंडलेस नहीं है, इट इज उसका पीरियड जो है वो एंडलेस है, दैट इज उसको कोई भी किसी भी तरीके का लिमिटेशन या टाइम पीरियड नहीं है, इट इज विदाउट एनी लिमिटेशन. कंटिन्यूटी में वो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होती जा रही है. नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि व्हेनेवर अ पर्सन ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी, सपोज इफ सुशांत इज ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी टू उदित, then in that case what must be done, Udit should get all the right relating to that particular property. But if suppose Sushant transfers a property to Udit and later on to his son and later on to his grandson and later on to his great grandson and later on to its great grandson, then in that case this is what a property has been alienated perpetually कंटिन्यूटी. तो उससे क्या हो जाएगा कि उदित जो है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा, दो सुशांत ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है बट फिर भी उदित उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने मन मुताबिक एंजॉय नहीं कर सकता. कहने का मतलब है अगर वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कुछ अच्छे दाम उसको आ जाए और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहता है, देन इन दैट केस वो उसको बेच नहीं सकता. क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि जो एलिनिएशन किया है प्रॉपर्टी का सुशांत ने वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया है और ऐसा करने से कुछ ना कुछ जरूर उसके एडवर्स इफेक्ट हमको
या तो ट्रांसफरी के इंटरेस्ट के ऊपर दिखेंगे या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर दिखेंगे। अब जैसा मैं कह रही हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर दिखेंगे मतलब प्रॉपर्टी स्टैटिक हो गई, उसकी वैल्यू जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी और उसका एलिनिएशन नहीं हो सकेगा। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी सुशांत ने ट्रांसफर की है वो खंडहर बन जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो जबकि एक्चुअली प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है तो उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती जा रही है और इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो स्टैटिक हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक हो जाएगी। वैसा ही ट्रांसफरी का जो राइट है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुशांत ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उदित को, अब उदित जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ भी एक्सपांशन नहीं कर सकता, साथ ही साथ वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जैसी हालत में वैसे ही इंजॉय करेगा, उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। ऐसे में जब उसके बाद में उसके बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी तो वो और खस्ता हालत में होगी। तो देखा जाए तो एक समय शायद वो प्रॉपर्टी ऐसी हो जाए जो बर्डनसम लगने लगे ट्रांसफरी को। तो इस तरीके से जो ट्रांसफरी है उसका भी इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द जर्मन इट मीन्स अ डिस्पोजिशन विच मेक्स द प्रॉपर्टी इनएलिनिएबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन है देन इन दैट केस वी कॉल द सेम टू बी अ perpetuity. Next is creating perpetuity is concerned with the interest created in a presentity which ought sought to be made inalienable for an indefinite period. Creating perpetuity का मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो हम क्रिएट करते हैं बेसिकली ट्रांसफरी में, और वो ट्रांसफरी जो है वो इनएलिनिएबल प्रॉपर्टी को अपने पास में रखता है इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इस तरीके से जब वो किसी प्रॉपर्टी को अपने पास में रखता है उसे हम कहते हैं इट इज नथिंग बट अ परपेचुटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द परपेचुटी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए है ना, बिकॉज उसका तो कोई पर्पज ही नहीं हुआ। देन इन दैट केस हम ऐसा बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल की जानी चाहिए और ये परपेचुटी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रूल बनाया जाना चाहिए। ये जो रूल हम बनाते हैं ये ही रूल डिस्कस किया गया है सेक्शन 14 में, जो कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी यानी इस तरीके की कंटिन्यूटी में किए जाने वाले ट्रांसफर के अगेंस्ट में जो रूल बनाया गया है दैट इज कॉल्ड एज रूल अगेंस्ट परपेचुटी। नाउ अभी हम बेसिकली देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो भी हम बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम इनएलिनिएबल कर देते हैं दो वेज में, है ना। कौन से दो वेज में हम इनएलिनिएबल कर देते हैं? सबसे पहले ट्रांसफरर जो है वो या तो ट्रांसफर करते वक्त में कुछ इस तरीके की कंडीशन डाल देता है जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी को एलिनिएबल होने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है या इस ट्रांजेक्शन को इम्पॉसिबल कर देता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अवंती आई विल बी ट्रांसफरिंग माय प्रॉपर्टी टू यू प्रोवाइडेड यू विल नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू एनीबडी। अब क्या हो गया, till the time Avanti is there she will be taking care of that particular property, but what about after Avanti? That particular property would become what? उसको कोई enjoy करने के लिए रहेगा ही नहीं, there would be no one to have a claim over that particular property। अगर मैं ऐसा बोल दूं देन इन दैट केस ये कंडीशन जो है अपने आप में वॉइड है क्योंकि दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफरर जो है वो इस तरीके की कंडीशन इम्पोज करके जो एलिनिएबल है बेसिकली प्रॉपर्टी का जो आने वाला फ्यूचर में ट्रांजेक्शन है उसको क्या कर देता है, इम्पॉसिबल कर देता है। तो इस तरीके से ट्रांसफरर जो है वो कंडीशन इम्पोज करके प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर देगा। एक ये तरीका हो गया प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर देने का। दूसरा तरीका क्या है, बाय क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ सो मेनी लिविंग पर्सन्स एंड लास्टली इन फेवर ऑफ सच अ पर्सन हु मे टेक बर्थ इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कि ट्रांसफरर जो है वो एक और तरीके से प्रॉपर्टी को इनएलिनिएबल कर सकता है। हाउ वी कैन डू सो, वो बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर कर देगा और वो ट्रांसफर ऐसा करेगा कि उनको किसी तरीके का डिस्पोजिंग का राइट नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। लास्टली वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे किसी पर्सन को मिलने वाली होगी जो कि फ्यूचर में होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आई ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ मारूक एंड देन later on Avni, then later on Udit, then later on Parvez, then later on सना एंड एवरीथिंग। इस तरीके से एक 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 करके एंड उसके बाद में मतलब बहुत से लोगों के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसके बाद में आफ्टर सम व्हाट ऑफ फ्यूचर ऐसा कोई जो
मान लीजिए उदित के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी लास्ट में उसको मिलेगी। अब ऐसे वक्त में क्या हो गया कि मैंने जो इंटरेस्ट क्रिएट किया प्रॉपर्टी में किसी ऐसे पर्सन के फेवर में जो बहुत सारे हैं ना, अवनीत के नाम पे भी किया मैंने, सना के नाम पे भी किया, उदित के नाम पे भी किया, परवेज के नाम पे भी किया, मारूफ के नाम पे भी किया, है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम पे मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। और लास्टली मैंने बोला सबसे लास्ट में वो जो फ्यूचर में आने वाला बेबी है उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलेगी जिसके बारे में मुझे भी कुछ पता ही नहीं है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। देन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ये एक तरीके से एलिनिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहे हैं, इन एलिनिएबल कर दे रहे हैं, नॉन ट्रांसफरेबल कर दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फ्यूचर में बच्चा जो आने वाला है उसके आने तक तो शायद प्रॉपर्टी भी ना बचे। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर ही नहीं रह गया तो ट्रांसफर तो वैसे ही वॉइड हो गया। तो ये बेसिकली तरीके से दो तरीकों से हम प्रॉपर्टी जो है वो इनएलिनिएबल कर देते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, तो व्हाट डज सेक्शन 14 सेज। अगर आप देखेंगे प्रोविजन बेसिकली सेक्शन 14 का, तो वो बोलता है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong. Now what does this mean? ये कहता है कि हम किसी भी ऐसे तरीके के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ऑपरेशन में नहीं लाएंगे जो कि बेसिकली क्रिएट करेगा इंटरेस्ट दो या दो से ज्यादा लोगों के लाइफ टाइम के बियॉन्ड। कहने का मतलब है कि जो भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं अगर हम लाइफ टाइम उसको थोड़ा सा आगे तक क्रिएट लंबा खींचना भी चाहते हैं तो हम सिर्फ कितना लंबा खींच सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जो लिविंग हैं एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, केवल तब तक ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को खींच सकते हैं। एंड the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period। और ये जो दो लोगों के लिए हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है इनके मरने से पहले या इनका इंटरेस्ट एंड होने से पहले जो भी अल्टीमेट ट्रांसफरी है या तो वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए या तो उसकी माइनॉरिटी पीरियड खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, और या फिर जो है वो बेसिकली इस तरीके से कैपेबल एंड साउंड माइंड हो जाना चाहिए, साउंड माइंड रहना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे कि इस तरीके का ट्रांजेक्शन जो है वो वैलिड है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बहुत सारे लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं और अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी ऐसे किसी पर्सन को मिलने वाली है जो फ्यूचर में कभी आएगा, अभी हमको पता नहीं है कि वो कब आएगा, देन इन दैट केस और उसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी, तो इस तरीके से किया गया ट्रांजेक्शन इनएलिनेबल कर देता है प्रॉपर्टी को। अब देखिए सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन वी हैव डेल्ट विद। First, when a property is transferred to so many people, so many persons for their lifetime, provided they are all alive on the date of transfer। लेकिन क्या जरूरी है, वो सबके सब क्या होने चाहिए, जिन भी लोगों के नाम पे हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो मैंने बोल रहा है मतलब दो या दो से ज्यादा, है ना, तो यहाँ पे या वन या उससे ज्यादा, तो यहाँ पे हम पकड़ के चलेंगे वन या उससे ज्यादा, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दे ऑल आर अलाइव ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो सब जो है वो क्या होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए जब ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। बट इफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट लाइफ इंटरेस्ट इज एन अनबॉर्न पर्सन, लेकिन अल्टीमेटली जिस भी पर्सन को हम बेसिकली प्रॉपर्टी देना चाहते हैं यदि वो अनबॉर्न है, कब तक अनबॉर्न है, जब तक लास्ट लाइफ इंटरेस्ट हमारा खत्म नहीं हो जाता, यानी लास्ट लाइफ इंटरेस्ट एक्सपायरी होने वाला है या एक्सपायरी हो गया है और फिर भी अभी तक जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है या अल्टीमेट ट्रांसफरी है वो क्या है, अनबॉर्न है। अब अनबॉर्न मतलब क्या है, वो चाइल्ड जो कि अभी तक मदर्स वूम में कंसीव भी नहीं हुआ है, then in that case the life interest cannot be created in his favor। तो life interest हम उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो गए हैं और फिर भी अभी तक देखा जाए तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी आया ही नहीं है, अल्टीमेट ट्रांसफरी आया ही नहीं है, ना तक यहाँ तक कि वो मदर्स वूम में भी नहीं आया है, तो हमें क्या पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तरीके से अगर मान लीजिए ट्रांसफरर ने सपोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर दी
तो उसे हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अनबॉर्न पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके से बाइंड हो जाएगी और इनएलिनिएबल हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैज टू बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। क्या बोलता है, ठीक है भाई ऐसा अनबॉर्न पर्सन है, फिर अब क्या करे, तो क्या बोलता है, नहीं अनबॉर्न पर्सन होगा तो कोई बात नहीं, सेक्शन 13 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, उसके तहत तो आप इवन अनबॉर्न पर्सन के नाम पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने की बजाय उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। लाइफ इंटरेस्ट किनके पास रहेगा, जो लोग बीच के बेसिकली बैरियर्स हैं, जो बीच के लोग हैं, जो प्रॉपर्टी को केयर कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। किसके लिए संभाल के रख रहे हैं, जो अल्टीमेट ट्रांसफरी है उसके लिए संभाल के रख रहे हैं। और ये जो अल्टीमेट ट्रांसफरी है जिसके लिए संभाल के रखा जा रहा है, यदि वो अनबॉर्न पर्सन है, देन इन दैट केस, वैसे तो जनरल रूल देखा जाए तो अगर अनबॉर्न पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी को परपेचुटी में ट्रांसफर कर दिया उसने, और ऐसे वक्त में प्रॉपर्टी इनएलिनिएबल हो गई। लेकिन यदि सेक्शन 13 को हम ध्यान में रखते हैं तो उसके तहत तो इवन अनबॉर्न पर्सन यानी जो मदर्स वूम में कंसीव भी नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमको कंप्लाई करनी है रूल अगेंस्ट परपेचुटी के तहत, वो ये कंडीशन है कि हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब क्या, कि इवन अ राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द विल एंड विश ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चाहे तो अपने विल और विश के हिसाब से कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकेगा। इस तरीके का राइट जो है वो बेसिकली हमको अनबॉर्न पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी अप्लाई होगा। नाउ लेट अस सी, जो भी अभी हमने सेक्शन 14 पढ़ा है उसके आधार पर सम आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स which need to be considered while further dealing with this particular topic. Firstly, this rule is also called as a modern rule against perpetuity because earlier there was no such rule, and therefore this is called as a modern rule against the perpetuity. The principle underlying this section is based on the common rule of free circulation of property for a better use by changing its ownership without any restriction which can make it inalienable. वे क्या बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली सेक्शन 14 का, वो कौन सी कॉमन रूल के ऊपर बेस्ड है, वो कहता है कि फ्री सर्कुलेशन होना चाहिए कभी भी प्रॉपर्टी का। जब फ्री सर्कुलेशन होता है तो ही जाके हम बेटर यूज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ओनरशिप चेंज होती रहती है और इसमें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है पर्सन के ऊपर प्रॉपर्टी को एलिनेट करते वक्त, ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो कि प्रॉपर्टी को इनएलिनेबल कर दे। तो कहने का मतलब है कि इट इज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी that the property need to be all the time alienable, and there must be a free circulation of the property, and that only free circulation can make the property useful, and that would be for the benefit or for the better use by changing its ownership from one person to the another. Next is the rule of wasting interest within the time period is known as a rule against perpetuity. जब हम अभी इसके अर्लियर स्लाइड में हमने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है फुल राइट रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब फुल राइट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी का फर्दर मतलब क्या होता है कि वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब इमीडिएट इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। इमीडिएट इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इमीडिएट इंटरेस्ट का मतलब हो गया जिस भी में मूवमेंट में ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर्टी, इमीडिएटली वो पर्सन उसका ओनर कहलाया जाना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए सेक्शन 14 के तहत एक या एक से ज्यादा लोगों को एज अ लाइफ टाइम या लाइफ इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, एंड देन इन दैट केस दे वुड बी ओनली टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो एक तरीके से क्या रहेंगे, केयर टेकर रहेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। हम सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही माइनर में पोस्टपोन्ड कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोस्टपोन्ड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका एंजॉयमेंट पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। और वो एंजॉयमेंट कब इफेक्ट में आ सकेगा, द वेरी मोमेंट जब अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आएगा, उसी मोमेंट में उसका एंजॉयमेंट भी और डिस्पोजिंग पावर भी इफेक्ट में आएगा।
तो इसीलिए ये जो रूल है ये एक तरीके का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है एक टाइम पीरियड के अंदर, और ऐसा टाइम पीरियड जिसको बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस में लाने के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है ये फ्रेम किया गया है। नाउ दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। ये जो प्रिंसिपल है ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। Now, let us see what is the object of the rule against perpetuity. Rule against perpetuity का object क्या है? तो basically two-fold object है. Firstly, to restrain the creation of future conditional interest in the property, यानी कि हम एक तरीके का future conditional interest उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई क्रिएट ना करे, करके हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक स्कीम में तहत एक तरीके का लिमिटेशन लेके आते हैं। So this is one of the object of the rule against perpetuity, and second one is to protect the property from becoming static and valueless. तो एक तरीके से हम क्या करते हैं बेसिकली जो प्रॉपर्टी है उसको स्टैटिक और वैल्यूलेस होने से बचाने के लिए हम इस तरीके से रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीके से ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। नेक्स्ट इज if we talk about the application of the section 14, सेक्शन 14 का एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसमें दो बातें हैं। अप्लाई फॉलोइंग तरीके से होगा। सबसे पहले द वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली इन सच अनबॉर्न पर्सन shall take place immediately on his birth provided he takes birth before the termination of last life interest। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमने भले ही प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हो जो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहे हो, बट अगेन इंपॉर्टेंट इज जो भी हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी है या अल्टीमेट ट्रांसफरी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो वो अनबॉर्न पर्सन है, बट वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट लाइफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो क्या हो गया, अगेन प्रॉपर्टी इनएलिनिएबल हो गई। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। इफ ही टेक्स अ बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट इंटरेस्ट होल्डर देन द इंटरेस्ट इन हिज फेवर शैल फेल। अगर मान लीजिए वो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ, सारा लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो गए, सारे जिन लोगों के नाम पे हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो सब खत्म हो गए, डिमाइस हो गया, और यदि उस वक्त तक भी अनबॉर्न पर्सन नहीं एग्जिस्टेंस में आया, देन इन दैट केस वो जो भी जब कभी भी आगे फ्यूचर में आएगा तो उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हिज इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शैल फेल। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम एनालिसिस करते हैं सेक्शन 14 का तो चार इंपॉर्टेंट बातें हमको समझ में आती है या चार इंपॉर्टेंट बातें हमको दिखाई देती है। सबसे पहले देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जानी चाहिए। दूसरा, द ट्रांसफर मस्ट क्रिएट एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, और ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने ट्रांजेक्शन किया है इसमें अनबॉर्न पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर ऑफ द पर्सन जो कि लिव है यानी जिंदा हैं, देख रहे हैं, एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर रहेंगे, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन ही देखा जाए तो पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन यदि ये कंडीशन ऐसी डाली गई है कि इमीडिएटली उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाएगा तो इमीडिएटली उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाएगा, बट क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है ऑन द वेरी डे ऑफ द बर्थ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का किस तरीके से डीलिंग करे, किस तरीके से न डीलिंग करे, करके माइनॉरिटी पीरियड तक इस पर्टिकुलर पीरियड को हमने एक्सटेंड किया है। तो इंटरेस्ट क्रिएटेड शुड टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर ऑफ द पर्सन्स लिविंग एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर एंड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन। इंटरेस्ट डेफिनेटली वहाँ पे क्रिएट रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, एंड अनबॉर्न पर्सन शुड कम इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। और ये जो अनबॉर्न पर्सन है इसमें एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन। जिन भी लोगों के नाम पे हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो लिविंग पर्सन है, वो प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहे हैं, पर ये प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले लोग एंड होने से पहले अनबॉर्न पर्सन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने बेसिकली आधा पोर्शन जो है वो देख लिया है।